the faster you sorry. The second way to stimulate your superconscious mind to relax completely, get your mind busy elsewhere. For example, when you go on vacation, you often become so busy doing other things that you don't think about your goals and problems at all. It seems that the more you can completely relax and let go, both mentally and physically, the more rapidly your subconscious mind will click into the action and begin giving you ideas and insight that you need. It seems that the harder that you don't try, the faster your subconscious mind will work for you. दूसरा वो रास्ता है कि आप अपने गोल के लिए तो लगे रहिए, लेकिन जब आप कहीं पे चले जाते हो, आप उस एनवायरनमेंट से दूर चले जाते हो, आप वेकेशन पे चले जाते हो और पूरे कंप्लीट तरीके से रिलैक्स हो जाते हो, बाय मेंटली फिजिकली सब कुछ और चीज अच्छी चीज करने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली किस रिलैक्स इसमें भी आपको कभी कभी आपके सुपर कॉन्शियस माइंड अचानक से कोई भी एक्शन जो है वो आपके आइडिया इनसाइट अंदर से आपको याद दिलाती है कि आप इससे भी ज्यादा कुछ और करके आपके सुपर कॉन्शियस माइंड प्रोएक्टिव होके आपको गोल आपका याद दिलाते रहेगा. You should try both method on every goal. First, work with single-minded concentration on the goal. Commit 100% of your energies to solve the problem. Then if you have still not experienced the आगे कीजिए. ओ मैं पूरा आगे पढ़ूँ या प्रशांत जी पढ़ लीजिए, टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं. Sorry. You should try both the methods on every single goal. First, work with the single-minded concentration on the goal. Commit 100% of your energies to solving the problem. Then if you have still not experienced the breakthrough your desire, get your mind busy elsewhere, take off, go on vacation, engage in physical exercise, so go to the movie, forget about it completely for a while. Then it at exactly, नहीं सब जी बहुत लंबा हो जाएगा, किसी और का चांस दीजिए. है तो वो सिंबल सेम उसी दो चीजों का बस ये खत्म हो गया है, टॉपिक यहाँ खत्म हो रहा है, लास्ट पे है. Okay. Engage in physically exercise or go to a movie, forget about it completely for a while. Then at exactly the right time, your subconscious mind will function and the answer will be appear. मतलब पहले जो दो चीजें बताई है उसी का ये सारांश है कि एक तो आप पूरा गोल पे सिंगल थिंग पे कॉन्सेंट्रेट हो जाइए और फिर उसके लिए 100% उसके लिए उसमें लग जाइए, या तो फिर उसको सिर्फ माइंड में रख के आप कहीं और फिजिकली किसी और इसमें लग जाइए, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि एक ऐसे राइट टाइम आ जाएगा जिस राइट टाइम पे आपको अचानक वो सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा और आपके जो कोई भी सवाल हो उसका जवाब आपको पूरे मिल जाएगा. थैंक यू. बहुत अच्छा प्रशांत जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया, एक्सप्लेन किया, वंडरफुल. तो आगे बढ़ते हैं. काफी लंबा था वैसे टॉपिक और एग्जैक्टली द राइट आंसर. और इसके लिए हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे जतिन. आप आइए, रीड कीजिएगा. आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है. अच्छा. बहुत लोगों का नेटवर्क का इशू चल रहा है आज, है ना? Your subconscious mind will bring you the exact answer you need at exactly right time for you. Therefore, when you receive a subconscious inspiration, you should take action immediately. Do not delay. This is often time-dated information. If you get inner urge to be taking action or make a call, move on it quickly. If you have a hunch about something, follow up on it and it seems that a very act of the very moving on the subconscious flash will trigger additional subconscious insight and inspiration that will help you. इतना ही. हाँ जतिन, तुम्हारा टॉपिक छोटा सा है. एक टॉपिक बहुत बड़ा हो गया, एक छोटा है. चलिए इसको एक्सप्लेन कीजिएगा. Telling you exact answer you need to at the right and exactly the right time for you.
मतलब जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपका मतलब जो जरूरत है उसके हिसाब से एग्जैक्ट आंसर देगा और राइट समय पर देगा। देयरफॉर व्हेन जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई इंस्पिरेशन आती है, तब आप जब आपके दिमाग में कोई इंस्पिरेशन आती है तो उस पे आप इमीडिएटली एक्शन लें और उसमें कोई देरी ना करें। क्योंकि अगर आप वो समय के साथ जैसे कोई बात निकल जाती है, कोई बात दिमाग में आती है, वो उस समय आप छोड़ देते हैं तो वो दिमाग से निकल सकती है। फिर आप इफ यू गेट इन अर्ज टू टेक एन एक्शन एंड मेक ए कॉल, तब आपके दिमाग में कोई ये बात पे एक्शन लेने की बात आती है या किसी को कॉल लगाने की, तो उस पे तुरंत मतलब वो काम कर लीजिए। एंड इफ यू हैव हंच अबाउट समथिंग, हंच मतलब क्या होता है? इंट्यूशन। Intuition? इंट्यूशन कब बताया नहीं? आपको अंदर से आवाज आती है। मतलब जब आपको अंदर से आभास होता है कि आप समथिंग, तब आपको इस बात पे फॉलो करना चाहिए और उससे seem to be very active moving on subconscious flash will trigger additional subconscious insight. It seem to very active moving, मतलब जब आप अंदर से आवाज आती तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको साथ में एक ट्रिगर मतलब ट्रिगर जो उसको आगे बढ़ाती है। मतलब एक तरह का फोर्स देगी, हाँ, अंदर से फोर्स देगी। तो अंदर से फोर्स देगी जिससे आप वो काम को करने में हेल्प करेगी। मतलब कि अगर आप अंदर से जब आ जाएगी जब आप करने को, तो आप उस समय तुरंत कर लीजिए, तो वो काम आपका इजी हो जाएगा जल्दी करने से। नहीं तो आप जबरदस्ती करेंगे तो वो काम इतना परफॉर्म से नहीं कर पाएंगे जितना आप अंदर से कर सकते हैं। बहुत अच्छा जतिन, बहुत अच्छा आपने रीड किया, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 स्पेशल क्वालिटीज। तो लोग मेधा जी को यहाँ पे बुलाते हैं। मेधा जी बहुत जबरदस्त आजकल वीडियो भी बना रहे हैं, कुछ मुझसे सुनते भी हैं। Thank you, sir. वेलकम। 3 special qualities. A superconscious idea or solution has 3 qualities. First, it will answer every aspect of the problem or give you everything you need to achieve your goal. The answer will be complete in every respect. Second, it will be a blinding flash of the obvious. A superconscious inspiration will feel natural, easy, and perfectly suitable to the situation. Third, a superconscious solution will give you a burst of happiness and excitement, even exhilaration. It will be one of those shining moments that you remember for a long time. Whenever you get a superconscious solution, it will come accompanied by the energy, enthusiasm, and motivation you need to take action immediately. You will have an irresistible desire to implement the solution right now. You will want to stop everything else you are doing to take action, and you will always be right. जब भी हमारा सुपर कॉन्शियस कोई आइडिया या सॉल्यूशन देता है तो उसके 3 क्वालिटीज होते हैं। फर्स्ट वन इज इट विल आंसर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर प्रॉब्लम, एंड जो आंसर होगा वो कंप्लीट होगा इन एवरी रिस्पेक्ट। एंड द सेकंड थिंग इज दैट इट विल बी अ ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ द ऑब्वियस। मतलब जो सुपर कॉन्शियस से हमें जो आइडियाज आते हैं वो आइडियाज बहुत नेचुरल और इजी लगते हैं, जैसे कि कोई पोएट या पोएट्री वगैरह लिखता है जो वो बहुत इजीली होता है वैसे ही। देन थर्ड वन इज जब भी कोई आइडिया या सॉल्यूशन आएगा हमें सुपर कॉन्शियस माइंड से, तो वी विल बी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर दैट, एंड ये हमारे जिंदगी का एक मेमोरेबल मोमेंट होगा। एंड ये जब भी whenever you get a super conscious solution, तो ये इट विल कम accompanied by energy, हमें एनर्जी, enthusiasm एंड मोटिवेशन होगा एक्शन लेने के लिए। ये सॉल्यूशन आने के बाद हम इमीडिएटली एक्शन ले पाएंगे, एंड एक
इंटेंस डिजायर होगी उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और हम जो भी काम कर रहे हैं वो छोड़ छाड़ के वो सॉल्यूशन को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। बहुत अच्छा मीना, बहुत जबरदस्त आपने रीडिंग किया और बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रस्ट इज द की रिक्वायरमेंट, और सुनीता जी से सुनते हैं इसके बारे में। Okay, sure, thank you. थैंक यू। Trust is the key requirement. Your superconscious mind is the most powerful faculty you have. It is available and accessible to you at all times. You dial in to your subconscious mind by being absolutely clear about what you want, and then by calmly and confidently trusting that exactly the answer you need will come to you at exactly the time you're ready for it. The more you relax and trust in this great power, the better and faster it will function. It has been said, men and women begin to become great when they begin to listen to their inner voices. When you make a regular habit of listening to your intuition and trusting your inner voice, you will probably never make another mistake. By tapping into your subconscious mind, you begin to bring your whole life into harmony with this great universal power. You will achieve goal after goal and move forward faster and faster in everything you do. You will feel as though you are plugged into some kind of cosmic energy source that enables you to accomplish vastly more and with much less effort than even before. Think back over your life and recall the times when your superconscious mind has worked for you. In the past, these experiences were random and haphazard, but by developing absolute clarity about your goals and by reviewing and visualizing them regularly, you can make this superconscious power work for you consistently and predictability all the days of your life. So all it says is, I'll put it in my words, that it's a matter of surrender. So surrender or trust is the same thing. When you trust the subconscious mind and its power, this faculty, this quality grows exponentially. The more you trust it, the more it works for you, and you become very calm and confident about achieving your goals. You will keep doing them one after one, and you will feel as though there is a higher energy pushing you towards accomplishing everything that you have laid your eyes on, set your goal on. It will happen seamlessly. You will not have to do a lot of effort, but as in the previous passages, it said serendipity and synchronicity will work for you. You will work with your intuition. Some inner voice will always guide you where to stop, what to do, when to do. So you will be, as we say, under His, that means God's supervision and guidance directly. एग्जैक्टली। That's it. सो बहुत अच्छा, सुनीता जी ने बहुत अच्छा बताया यहाँ पे। और एक काफी अच्छी सरेंडर जब वर्ड यूज किया तो उस पर है ना एक अच्छा सा एक कहानी याद आ गया, कहीं पे सुना था कोई ये वाक्य। तो कहते हैं कि विष्णु जी के है ना दो मतलब क्या वो है, एक राम है एक कृष्ण है, ठीक है। और उनके दो भक्त है, राम जी के भक्त है हनुमान जी, और एक कृष्ण जी का भक्त है, उनका नाम अर्जुन है, ठीक है। और एक पूरा सरेंडर में था, वो राम राम कुछ भी कहे तो राम ही करता था। और एक बंदा है वो क्वेश्चन बहुत पूछता था, अर्जुन है ना, हाँ अवतार अवतार, ठीक है। सो अर्जुन क्वेश्चन बहुत पूछता था, तो उनके उसके चक्कर में भगवत गीता लिखी। लेकिन किसी ने देखा अर्जुन का कहीं पे मंदिर मंदिर? किसी ने नहीं देखा होगा। तो सरेंडर मतलब
फुल सरेंडर होता है। और जब सरेंडर करते हैं ना, तो आप है ना, जिसको सरेंडर करते हैं आप उससे भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। मतलब हनुमान के, मुझे लगता है कि राम से ज्यादा मंदिर हनुमान के होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि यार ये ऐसा क्यों करना है, वैसा क्यों करना है। करना है मतलब करना है ना। तो Right. सरेंडर का वो पावर होता है, अगर हम किसी को सरेंडर कर देते हैं तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो हमें और आगे लेके चला जाता है। Absolutely. चलिए, और थैंक जब यू। हम अपनी थोड़ी सी अकल लगाने लगते हैं तो भगवान कहता है ओके, लेट हिम कीप ट्राइंग। जब ये मेरे पास आएगा तब मैं इसको दिशा दूंगा, नहीं तो कर ले ये अपना। लेकिन जो सरेंडर करता है उसको तो वो हाथ उंगली पकड़ के चला देते हैं। एग्जैक्टली। चलिए दीपक जी, आप इसको आगे बढ़िए और एक्सप्लेन कीजिएगा अगले कुछ पॉइंट्स को। एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कीजिए। थिंक बैक ओवर योर लाइफ एंड रिकॉल अ टाइम व्हेन यू हैड अ super conscious experience that solved a problem or enabled you to achieve your goal. Reflect on the process and think about how you can duplicate it. तो पिछले अपने पास्ट में जाइए लाइफ के और एक रिकॉल कीजिए जो टाइम था, जो कि आपका एक्सपीरियंस था, जो आपने कुछ प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व किया और अपना जो गोल था उसको आपने अचीव किया। एंड जो भी प्रोसेस था गोल अचीवमेंट का, और उसको गोल अचीव करने में आपने कैसा उसको पा लिया गोल को। सेलेक्ट योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल, योर मेजर डेफिनेट पर्पस एंड विजुअलाइज इफ क्लियरली ओवर एंड ओवर with complete confidence that it will materialize at exactly right time for you. तो आपकी जिंदगी का मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल आप सेलेक्ट कीजिए और उसका भी कुछ पर्पस होगा, योर मेजर डेफिनेट पर्पस। और जो भी पर्पस है उसको विजुअलाइज कीजिए क्लियरली और विजुअलाइज करते जाइए और फुल कॉन्फिडेंस से उसको विजुअलाइज कीजिए और वो राइट टाइम को आपको मिल गया है ऐसा विजुअलाइज कीजिए। Begin the daily practice of solitude and meditation during this time. Just let your mind relax and float from subject to subject until exactly the right answer to the right question pops into your mind. तो जो भी विजुअलाइजेशन है उसका डेली प्रैक्टिस चालू कीजिए और विथ मेडिटेशन। ड्यूरिंग दिस टाइम, जो मेडिटेशन का टाइम है, आपका माइंड को रिलैक्स कीजिए और रिलैक्स करके अपने माइंड को क्वेश्चन पूछिए कि उसका राइट आंसर आपको मिल जाए। जो भी राइट क्वेश्चन आपने पूछा है अपने माइंड को मेडिटेशन के टाइम, तो उसका राइट आंसर ऑटोमेटिकली अपने माइंड में पॉपअप करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा दीपक जी, है ना। और ऐसा हम सबके साथ में अक्सर होता है, और बहुत सारी अच्छी जो इन्वेंशंस हुई है वो इसलिए हो पाई है कि उन्होंने, है ना, उस क्वेश्चन को, सही क्वेश्चन को अपने दिमाग से पूछा। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी समस्या थी, और उन्होंने पूछा तो उनको, है ना, बंदर दिखे, 6 बंदर आपस में हाथ पकड़ के डांस कर रहे थे, और वहीं से बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। तो सही सवाल, जैसे गूगल को भी सही सवाल पूछते तो सही जवाब देता है ना। तो थैंक यू दीपक जी। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देवांशु जी आप आगे रीड कीजिएगा और एक्सप्लेन कीजिएगा। मेक इट से क्या? हाँ, मेक इट से। Make it a participate to take a action on a superconscious idea as soon as it comes into your mind. Don't hesitate. Have complete faith that
only the best can happen when you trust in this power. Try to solve your problem with single minded concentration, and if that doesn't work, get your mind busy elsewhere. At exactly the right time, the ideal situations will emerge from your intuition as appear in your life. Your superconscious mind work for you in a direct propo- proportion into your complete trust and a confidence in it. Practice letting go on regular basis and wait patiently until exactly the right answer comes to your at exactly the right time. Make it practice to take action on a superconscious idea as soon as it comes into your mind. मतलब everyday, मतलब आपको तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आपकी सुपरकॉन्शियस में वो चीज बैठ नहीं जाती, मतलब वो आ नहीं जाती, तब तक आपको प्रैक्टिस करना है. डोंट हेजिटेट, मतलब आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है. हैव कंप्लीट फेथ दैट ओनली द बेस्ट कैन हैपन व्हेन यू ट्रस्ट इन दिस पावर. मतलब आपको पूर्ण रूप से विश्वास रखना है उस एनर्जी, उस पावर में, जब तक वो चीज हो नहीं जाती. मतलब बोलते ना 1% डाउट भी नहीं होना चाहिए, वो वाली बात है. नीचे करिएगा 1 मिनट. ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए विद अ सिंगल माइंडेड कंसंट्रेशन. एकाग्रचित होकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए. एंड इट दैट डजंट वर्क, गेट योर माइंड बिजी एल्सवेयर. अगर वो चीज काम नहीं करती तो अपने माइंड को कहीं और एंगेज करने की कोशिश करिए. एट एग्जैक्टली द राइट टाइम द आइडिया सॉल्यूशन विल इमर्ज फ्रॉम योर इंट्यूशन और अपीयर इन योर लाइफ. मतलब उसी टाइम पे एग्जैक्टली कई बार ऐसे होता है कि कई आइडिया और सिचुएशन उस चीज में इमर्ज हो जाती है और आपको कुछ ऐसे मतलब कुछ चीज अपीयर होती है और कुछ ऐसे सिग्नल मिलते हैं और आपकी लाइफ में कुछ अचानक से होता है उस टाइम पे. योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क फॉर यू इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू योर कंप्लीट ट्रस्ट एंड अ कॉन्फिडेंस इन इट. मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड भी तभी वर्क करता है और जब आप डायरेक्ट, मतलब उस पे आप पूर्ण 100% आप जब ट्रस्ट करते हो और 100% आपको कॉन्फिडेंस रहता है, तभी वो अपीयर होती है वो सारी चीजें. प्रैक्टिस लेटिंग गो ऑन ए रेगुलर बेसिस. मतलब जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो आप वो एकदम रेगुलर बेसिस पे करो. वेट पेशेंटली अंटिल एग्जैक्टली द राइट आंसर कम्स टू योर एट एग्जैक्टली द राइट टाइम. मतलब तब तक पेशेंस रखिए जब तक आपको सही टाइम पे, आपको सही आंसर जब तक आपके दिमाग में आपको नहीं मिल जाता, तब तक आपको पेशेंटली वो चीज की प्रैक्टिस करना है. बहुत अच्छा देवांशु जी, अच्छा रीड किया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. तो इसी के साथ हमने एक और चैप्टर खत्म कर लिया है. आप सबकी मदद के साथ हमने काफी अच्छा सीखा. कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 को, जो है रिमेन फ्लेक्सिबल एट ऑल टाइम्स. बहुत जल्दी ये बुक भी खत्म होने वाला है. 2-3 और चैप्टर बचे हमारे पास. थोड़ा ही बचे. हाँ. तो कल इसको पढ़ेंगे, लेकिन आज के अगर किसी को कुछ सवाल है तो उस पर बात कर सकते हैं हम लोग. चलो कितने चैप्टर रहते हैं? चैप्टर कितना है हाँ वो भी बता देते हैं. कितने 21 है. 4 चैप्टर और बचे हैं. बंद है. तो चलिए, मतलब काफी सारे, ये बुक पढ़ने से काफी सारे लोगों के गोल कंप्लीट हो रहे हैं ना. तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो पढ़ा, इसमें अगर किसी को कुछ क्लैरिटी चाहिए या कुछ ऐड करना चाहता है कोई, तो पहले उस पर हम लोग बात करते हैं. चलो कोई बात नहीं, तो फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग ले लेते हैं शेयरिंग. आज किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो उस पर बात कर लेते हैं. चलो मेरा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन. हाँ बोलो. बोलिए श्री गणेश हो गया. जतिन के जबरदस्त सवाल के बाद में ना, जतिन के जबरदस्त जवाब भी आया करेंगे थोड़े दिन को. चलो जतिन भाई
ये क्वेश्चन मैं 2 दिन से याद कर भूल जाता था, अब मुझे पहले भूल गया, अब फिर याद आया, मैं कहा पूछ लूं, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि कई बार हम बोलते हैं, बंदे ने कुछ पूछना होता है, ठीक है, या कोई बताना होता है, तो पूछता है, उसने बात वही बोलनी होती, पर वो शुरू में बोलता है कि माइंड मत करना, अगर वो सीधा बोल देता है तो वो कई बंदे को बुरा लग जाता है, और ये बात बोलता है कि माइंड मत करना, तो तब वो बात बोलता है तो वो उसे गुस्सा नहीं लगता। दोनों में फर्क क्या होता है? बात तो उसने वही बोली, तो दोनों में फर्क क्या हुआ कि माइंड में सिचुएशन जो है वो बदल गई। ये तो मैं वो बताती हूँ। सो जब आपने बोला कि माइंड मत करना, तो आप इससे आपकी सेंसिटिविटी शो करती है कि जो मेरा क्वेश्चन है शायद किसी को हर्टफुल भी हो सकता है, और जो कभी एक कॉन्शियस इंसान होगा जो दूसरे की फीलिंग की कदर करेगा और इस इंटेंशन से बोलेगा कि देखिए हर्ट मत होना, ये मेरा एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, तो उससे क्या होगा, अगर हर्टफुल होगा भी तो क्योंकि आपने पहले बोला हुआ होगा, वो वहीं पे उसको डिफ्यूज कर देगा, माफ कर दिया जाएगा। और शायद आपको कोई प्यार से सलाह ही दे देगा कि देखिए जतिन, ऐसा नहीं पूछ